मतलब ये भी- Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum And assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. in a very sweet vanilla and Cadbury, welcome all. And I hope all of you are feeling well, great, nice, lovely, and awesome. Besides that, I also hope that you have done the sunnahs of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That Prophet Muhammad sallam, he himself used to do on Friday, like trimming the nails on Friday, wearing new dress, going to masjid on feet, recitation of Durud Pak, recitation of Holy Quran, and using the scent, atar. Scent means atar, using the scent. So these were the sunnahs of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that he used to do on Friday. Alhamdulillah, I have done these sunnahs, and I hope you all also have done these sunnahs. And besides that, I wish you vanilla, butterscotch, lovely, Gloria Jeans cappuccino, and a very Cadbury happy Islamic Friday to you, your family, and the entire globe. May Allah Azza wa Jal accept your salah and His blessed shadow. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept whatever you have prayed from Allah regarding for yourself, for your family, and for the ummah. May Allah accept. And besides that, I also hope that you had prayed for all those people who are very in difficult situation. I would like to bring into the highlighted door. I'm asking simply about those who are suffering in Palestine, Gaza, in Afghanistan, and some parts of Pakistan. In the same case, there are lots of people who are suffering in India. So in the same case, everywhere you can find the sufferings of the people. Hope you had prayed for them. And the best thing in the world is what? That is peace, harmony. If there is no peace, harmony, so I'm really sorry. To have a very delightful life is always impossible. If you are telling that I want to receive, I want to get education, so I may become doctor, engineer, philosopher, or pilot, or any other profession that you are willing for. But if you are not having the atmosphere of what? Peace. The atmosphere of what? Calm environment. The atmosphere of what? The atmosphere of a situation in which you can deliver your perspective. Then it's always difficult for me, for you. And besides that, I'm really sorry to say that nowadays, some of the people, they do not have mutual understanding. Now let's define the word mutual understanding. What's mean by mutual understanding? Mutual understanding means, like mostly you are using this social media. If I talk about the Facebook. So if somebody is, you are saying mutual friend. Now what is my mutual friend? That this person is friend with you and this person is friend with that person also. Then it becomes mutual friend. It means that friend is friend with you and as well as with the second person. Now there is a second word, mutual understanding. Now, what is mutual understanding? Mutual understanding is an understanding in which you are understanding me, in which you are understanding, and you are understanding me. You are understanding me, and I'm understanding you. This is called mutual understanding. And to be very, very frank and candid, अगर मैं candid बातें करूँ ना candid, करें बिल्कुल straightforward, candid. If I speak very candid, so believe me, I'm really sorry to say you are not having mutual understanding in your family. You are not having mutual understanding in your family. Now, maybe you are saying, oh, I have mutual understanding with my mother, with my father. No, you don't have. You don't have mutual understanding with your uncle, with your paternal uncle, with your maternal uncle, with your maternal aunt, with your paternal aunt, with your maternal cousin and paternal cousins. You are not in a position to understand all of your relatives. If you face a situation, you are ignoring, you become angry.
यू डू नॉट लिसन, आप नहीं सुनते, मेरा उस मामू के साथ नहीं लगता, मेरा उस कजन के साथ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वाई? क्यों नहीं लगता? क्वेश्चन है भाई, मेरा मामू है, क्यों नहीं लगता? भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं मामू को नहीं समझता, मैं खुद को मामू की जगह पे रखूं, इफ आई पुट माई सेल्फ इन द प्लेस ऑफ मामू, इन द प्लेस ऑफ अंकल, फिर मैं समझ जाऊंगा हु इज माई अंकल एंड हाउ कैन आई डील, कि मुझसे मेरा डीलिंग कैसे होगा। ओके, मेरा उस कजन के साथ नहीं लगता, क्यों नहीं लगता भाई? पुट योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ दैट कजन, देन यू विल रियलाइज। राइट और नॉट? अब देखिए, आप लोगों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं बिल्कुल दोस्तों के साथ। If a friend is saying something, you are saying opposite. If you are saying something, your friend becomes opposite. Why? Mutual understanding ही नहीं है. If your friend is not understanding you, so put yourself in the place of friend, then you'll understand. अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या मतलब? मैं दूसरों को समझूं, दूसरों को समझूं, बट वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड अदर्स। लेकिन हम तो इस हालत में नहीं है कि मैं दूसरों को समझना चाहूं। सपोज देयर इज अ वेंडर, वेंडर मीन्स रेरीवारा। क्या है रेरीवारा? जो हाथगारी वाले होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, मैं उसको भी नहीं समझता। ओके, आई डू नॉट लुक द वेंडर्स विद माई रिस्पेक्टेड आईज, रिस्पेक्टेड आंखों से अब उसे नहीं देखते हैं। कोई और प्रोफेशन वाला है, सपोज पायलट है, तो हम उसको उस रिस्पेक्टेड आंखों से देखते हैं। Are you getting me? Mohsen, is my voice clear? Samira is saying that my voice is not clear. Yes, sir, your voice is clear. Okay, Samira, I think it's your connection is unhealthy. Okay. So रेडिवारा को खुद को मैं रखूं, so I can understand कि yes, a vendor जो रेडिवारा है, he is selling the items for his daughters, for his sons, for his mother, for his father. एक रेडी वाला जो काम रेडी हाथ लगाते, लेकिन इज्जत भरी आंखों से नहीं देखते हैं। अगर मैं खुद को, इफ यू पुट योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ दैट वेंडर, तो सब समझ जाएंगे कि हाँ, मेरे तो बेटी है, मेरे तो बेटा है, मेरे तो अब्बू है, मेरे तो अम्मी है। आई एम वर्किंग इन ऑर्डर टू फीड देम, इन ऑर्डर टू गिव देम फूड। एक वॉचमैन है, if I put myself in the place of watchman, so I will understand that yes, a watchman has daughter, son. So to have the mutual understanding in the society is very, 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 very extremely vital. और ये unfortunately mutual understanding हमारे घरों में ही नहीं है, और बड़ी अफसोस की बात है। कोई मामू के साथ नहीं लगता मेरा, चाचू के साथ नहीं लगता, कजन के साथ नहीं लगता, फिर तो आप जाहिल हो। Then you are talking something which is illiterate. फिर जहालत हो गई है। तो फिर चलो, वो नहीं समझता, आई एम सेंसिबल, मैं समझदार हूं, तो मैं समझूंगा। I will try to understand, I will try my best to understand. अब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगा कहाँ से? अब ये भी सवाल है ना। ओके, चलो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में समझ गए कि मतलब मैंने उसको समझना, उसने मुझे समझना है। द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी बिल्ड अप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग? अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें कैसे आएगा? अब ये भी एक सवाल है। हाँ, कैसे आएगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन टू यू एंड अ वेरी बिग क्वेश्चन टू मी एंड अ वेरी बिग क्वेश्चन टू योर फैमिली। आपकी फैमिली के लिए बड़ा बिग क्वेश्चन है ये।
How can I build up the mutual understanding? So in order to build up the mutual understanding, the first material unit जो पहली चीज आपको चाहिए है, that is endurance. Endurance, बर्दाश्त. लफ्ज बड़ा आम है, endurance. बड़ा आम सा लफ्ज है endurance. सब्र करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो. लफ्ज काफी कॉमन है, लेकिन इसमें जो ताकत है, इसमें जो फ्रूट्स है, वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम ही मिलेगा. जो बर्दाश्त का लफ्ज है ना, हम इसे काफी हल्के में ले लेते हैं. मतलब बर्दाश्त क्या चीज है, तो आम सा लफ्ज है, इसको हम हल्के में लेते हैं, काफी ज्यादा हल्के में लेते हैं, काफी ज्यादा हल्के में लेते हैं. लेकिन इसमें जो ताकत है, जो ताकत अल्लाह ने इसमें दिया है, बिकॉज ये इंडोरेंस हमें कहां से मिला है? फ्रॉम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम. अब अयूब अलैहिस्सलाम ने, द वे अयूब अलैहिस्सलाम endured the difficulties of life. आपने सुना होगा हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के बारे में. जो बीमारी में वो मुब्तला थे, अराउंड अबाउट 23 to 25 years. और बीमारी भी कैसी बीमारी थी? Which kind of diseases that Hazrat Ayyub alayhi salam had? Hazrat Ayyub alayhi salam had the disease of what? Gigantic pimples. इतने इतने दाने उसके जिस्म से निकलते थे, इतने. The whole body was covered. And may Allah won't make me wrong, मैं से गलत हो सकता हूँ, around about 23 or 25 years इस तरह सफर किया है. He lost his children, he lost his wealth, he lost his wife, फिर भी worshipping Allah. तो उसके बाद जो उसे सिला मिला है, इतनी बर्दाश्त के बाद, which is mentioned in the Holy Quran. अय्यूब अलैहिस्सलाम को बकायदा नाम आया सब्र के हवाले से, कितना सब्र किया था. But we people are not entrusted to listen such prophets incident. लेकिन हमें तो इतना शौक नहीं, दिलचस्पी नहीं इन प्रॉफिट्स के वाक़ियों से. हमें जो दिलचस्पी है, जो मौजूदा हालात में जो जिंदा लोग हैं, उनकी मिसाल देंगे तो कहेंगे हाँ दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू कहेंगे. अब देखें ओबामा, बैरक ओबामा अब जिंदा में, हाँ, ही इज द सन ऑफ फार्मर, एक किसान का बेटा है, लेकिन जो सब्र उसने किया है और अभी जो ताकत मिली उसे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गए. अब कहेंगे हाँ अभी तो मुझे सब्र करना चाहिए. तो ये भी हमारी गलत सोच है. इट्स ऑल्सो वेरी, जब मुसलमानों का नाम आ जाए तो मोटिवेशन होते नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं होते बंदों में. जब ऐसे लाइक वी ब्रिंग सम नेम्स तो फिर यकीन कर लेते हैं. देखिए, यू आर लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू टू बिकम एन अमेरिकन. अब अंग्रेजी जुबान सीखे लेकिन अंग्रेज ना बने, अंग्रेजी जुबान सीखे लेकिन अंग्रेज ना बने. अब हम आपको मिसाल देंगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुश्किलात से वो गुजरे, घर में कुछ भी नहीं तो इंस्पिरेशन में आएगा नहीं. बट यस, आई गिव द एग्जांपल ऑफ जैक मा, शायद इंस्पिरेशन आ जाए. जैक मा, अच्छा जैक मा गरीब का बच्चा था, कुछ भी नहीं था वो. नो, तो हजरत उमर फारूक तो बन गए ना हजरत अबू बकर, खलीफा, द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड. तो देखें, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट कम्स फ्रॉम इंडोरेंस. ये आपको बर्दाश्त से आएगा. जो बर्दाश्त में अल्लाह ने जो ताकत दी, जो पल दिए हैं, यू कैन नॉट गेट एनी अदर थिंग. ये किसी और चीज में नहीं है. एक्चुअली जहालत ये भी है, हाशिर जरा गौर से सुने, जहालत ये भी है, वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट that yes, a leaf cannot move without the permission of Allah. A leaf cannot move without the permission of Allah. एक पत्ता नहीं हिल सकता बगैर अल्लाह की इजाजत. अल्लाह की इजाजत के बगैर
पत्ता नहीं हिल सकता। ये बाकायदा कुरान में मेंशन है। हम ये मानने को रेडी हैं, हम ये मानते हैं, लेकिन ये मानने को रेडी नहीं है कि बंदे को प्रॉब्लम्स आ गए, बीमारी आ गए घर में। तो क्या ये अल्लाह के इजाजत के बगैर आ सकते हैं घरों में मसले, घरों में बीमारी आ सकते हैं अल्लाह के बगैर की इजाजत के? अब ये मानने को रेडी नहीं है, जहालत की जहनियत, अब ये मानने को रेडी नहीं है। बड़ा अजीब नहीं है? अजीब नहीं, आई वुड से ये समथिंग आई एम रियली सॉरी टू से कि तो वो अगर आप तालीम याफ्ता भी हो फिर पढ़े लिखे जाहिलों की सोच है फिर तो ओके, मैं ये मानने को रेडी हूँ पत्ता नहीं हिल सकता, a leaf cannot move, नहीं हिल सकता अल्लाह के बगैर, इजाजत के बगैर। लेकिन घर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अल्लाह के इजाजत के बगैर, हो सकता है ये, वो भी जो कि अल्लाह ताला has clearly mentioned in the Holy Quran, अशरफुल मखलूकात, अशरफुल मखलूकात का नाम दिया गया है। उसको कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे अल्लाह की इजाजत के बगैर? चलो बीमारी आ गई, बीपी हो गए, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, एलर्जी हो गया, या कुछ और है, अम्मी बीमार, अब्बू बीमार, तो अल्लाह के बगैर कैसे हो सकता है? अब ये मानने को रेडी नहीं है, जहालत ये रेडी नहीं है। देखिए इन ऑल दीज थिंग्स क्या है, इन ऑल दीज थिंग्स ये आपको बस एक लफ्ज देगा, इंडोरेंस, बर्दाश्त आपको समझाएगा। ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, आप लोगों में नहीं होगा शायद। मैं हाशिर से शुरू करूं, समीरा से शुरू करूं, मरियम से, हदीजा से, सादिया से, साजिद से, मोहसिन से, और इश्रे से, उमेर से, कामरान, गुल और अकील से। किसी का नाम निकले हुए, यार मैं उस मामू के साथ नहीं लगता, उस कजन के साथ नहीं लगता, उस रिश्तेदार के साथ नहीं लगता, निकलेगा कुछ ना कुछ जरूर। आई एम हाईली श्योर। आज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ। कभी कभी आप सही भी हो ना, आपने सामने वाले को सही ठहराना है तरीके से। अगर मैं आपको 9 नंबर लिख के दूं ना, 9 नंबर, 9, अगर मैं अपनी तरफ से देखूं ये 9 नंबर है, लेकिन आप जब देखोगे ना ये 6 नंबर होगा, आप कहेंगे 6 नंबर है, मैं कहूंगा ये 9 नंबर है। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होंगी यहाँ पे। हाँ ओके, मैं अपने आप को आपके जगह पे रखूंगा तो तब ये 6 होगा, या खुद आप मेरी जगह पे आएंगे तो ये 9 होगा। रिश्ते ऐसे बनते हैं, खुशहाली, हैप्पीनेस इन द फैमिली ऐसे आते हैं। ये नफरतें नहीं आती, नफरतें, नफरत खुदा के वास्ते पहले से दुनिया में बहुत बड़ी नफरत है। There is already too much abhor, there is already too much hate in the world. For God's sake, for Allah's sake, stop it. बहुत बड़ी नफरत है दुनिया में, पहले से ही बरी हुई है नफरत है दुनिया में, खुदा के वास्ते। थोड़ी सी मोहब्बत भी फैला दे, इज्जत भी फैला दे, इज्जत करना फैला दे। ये बातें करना ब्ला ब्ला ब्ला, ये जरा स्टॉप करें प्लीज। पहले से ही ज्यादा है, इतनी ज्यादा है उसके पीछे बात उसकी, ये बहुत ज्यादा है। उन मजलिसों से बच के रहे जिन मजलिसों में लोगों की गैबतें होते हों। क्लियर? सो हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद योर फैमिली। अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखे, तभी तो बन पाओगे एक अक्लमंद और दानिश्वर शख्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोफिस्टिकेटेड पर्सन। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड लफ्ज हर एक के लिए इस्तेमाल होता भी नहीं है, और हर एक बंदा इस लफ्ज के बारे में इल्म भी नहीं है कि दानश्वर बंदा कौन होता है। सोफिस्टिकेटेड पर्सन, हु इज सोफिस्टिकेटेड पर्सन? क्लियर? सो right now I thought it's very important to give you about a message regarding mutual understanding, so I have given. Now it is your duty to express this message to others. All right, so first of all I want to ask you, अगर आप में से किसी के पास good news or bad news है, so please you can share.
Yes, no one is having good or bad news. No, sir. Afarid. Last night I have snowball in my places. Wow, that's very awesome. Yes, sir. Okay, so if you have nothing to share, तो हम जाएंगे debate की तरफ. So before that, आप लोग debate enjoy करेंगे and I'm going to enjoy the pudding. ये पता है what is this? This is pudding. You know pudding? हम इसे खीर कहते हैं, right? एक pudding. एक हमारे पास हलवा होता है confection. जो शादी में मिलता है ना pudding. So this is a pudding brought by one of the staff, and I'm going to enjoy this. So before this, आपको मैं लफ्ज दे दूं, हमारी है डिबेट आज. डिबेट का एक दूसरा नाम मैं आपको दे दूंगा. इट इज कंट्रोवर्सी. कंट्रोवर्सी. कंट्रोवर्सी मींस डिबेट, बहस Sir, your मुबाहिसा. voice is cutting. ओके. कंट्रोवर्सी. कंट्रोवर्सी मींस बहस मुबाहिसा, राइट? सो आज आपकी कंट्रोवर्सी है. एंड कंट्रोवर्सी हमारे पास टू साइड्स है. प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर्स एंड राइवल्स हैं. राइवल्स में मुखालिफिन को कहते हैं. इनके राइवल्स कौन होंगे? गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर्स होंगे, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस. इसमें एक लफ्ज है जो इंपॉर्टेंट है, अलाई. अलाई का मतलब है सपोर्टर. अलाई का मतलब क्या है? सपोर्टर. क्लियर? सो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर्स वाले कौन कौन थे? सो इफ आई Sir, me. अच्छा, समीरा प्राइवेट. Sir, I am private. अच्छा, Sir, I'm also. ओके. Alright. समीरा, मोहसिन. अच्छा, वेट Sir, I am. वेट बस एनफ. ओके. सो हाशिर, सादिया, समीरा, इशरत. तो मोहसिन कितने बंदे लोगे? 1 2 3 4 5 बंदे हैं. रह गए हमारे पास खतीजा, साजिद, उमेर, मरियम. तो 4 बंदे जो है आप लोग गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर्स को डिफाइन करेंगे फिर. ओके, सर नो, मैंने प्राइवेट किया है. खैर नो प्रॉब्लम, आप गवर्नमेंट पे बात करेंगे. सही है. सर थोड़ी सी प्राइवेट भी कर लें. ओके, चलिए आप प्राइवेट ग्रुप में. तो गवर्नमेंट वाले हमारे पास रह गए साजिद, उमेर एंड मरियम. सो इसके एक और बंदे हमें इसे देना है. सो हु विल गो? Sajid is here, Mariam, Umair, Riyaz disconnected. Okay. So इशरत, आप गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहेंगे? No, sir. अच्छा, सो साजिद, उमेर एंड मरियम. तो आप दोनों 3 बंदे हो गए गवर्नमेंट वाले. इज दैट ओके या मैं आपको एक बंदा दे दूं? It is okay, sir. ओके. सो मैं भी ब्रेकआउट करने वाला हूँ. ओके, आई एम गोइंग टू ब्रेक योर ग्रुप्स. आपके ग्रुप्स अभी ब्रेक होंगे. सो आपके पास मैं आपको टाइम दूंगा 8 मिनट्स. अब ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे. 8 मिनट्स के बाद आपने फिर इधर सेशन में खीर, पुडिंग, हलवा, खीर होता है पुडिंग. ओके, हलवे को हम कहते हैं कन्फेक्शन. क्लियर? आई मैं आपको ब्रेकआउट करूंगा. आपके पास 8 मिनट से 8 मिनट्स मींस आप डिस्कशन करेंगे अपने ग्रुप्स में.
मैं ब्रेकआउट करूंगा तो आप क्या क्या कहेंगे, दूसरे से डिस्कस करेंगे, अंडरस्टूड। और एक बंदा ग्रुप लीडर बनेगा आपकी। फिर आप जब सेशन में आएंगे तो मैं आप सबको मौका दूंगा बोलने को, फिर आप एक दूसरे से ऑपोजिट सवाल कर सकते हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू ब्रेक आउट द रूम्स। Excuse, यस excuse me, sir. यस Sir, mutual understanding किसे कहते हैं? एक दूसरे को समझना। Thank you, sir. अच्छा, तो ये ग्रुप में डिवाइड करने वाला हूँ। ओके, आप सबके पास कितने मिनट्स हैं? ये मैंने 8 मिनट्स कर दिए हैं। 8 मिनट्स। तो ग्रुप 1 में 6 बंदे हो गई, 1 2 3 4 5 6, और रूम 2 में सिर्फ 3 बंदे हो गए। मोहसिन, आप गवर्नमेंट की तरफ आना चाहेंगे? Yes, sir. No problem. चले मोहसिन, आप गवर्नमेंट में। ओके, आई एम गोइंग टू डिवाइड योर ग्रुप्स। ज्वाइन करें, ज्वाइन योर ग्रुप्स प्लीज। ज्वाइन करें प्लीज। मरियम, साजिद, समीरा, उमर, ज्वाइन करें। मरियम एंड उमर, ज्वाइन योर ग्रुप्स प्लीज। उमर, ज्वाइन योर ग्रुप। Can I give? Yes, sure. Go ahead. Discipline with learning. In gov schools, these things are hardly taken care of. Private schools pay attention toward discipline of every student is a part of routine, punctuality, hygiene, and uniform. That's all. Thank you. That's a good point. Go ahead, Hashif. The government school is the private school is very good. The private school is good school and break not come to Mohsin bhai and sister Mariam. जी मोहसिन भाई। Alaikum Hello. salam. So, Sajid bhai, what we can say in government colleges? वो देखा जाए कि गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा पॉइंट हैं जिस ग्रुप में अब हैं। ये आवाज़ आ रही है, पता नहीं। Yeah, I think उमेर भाई की तरफ से है। हाँ, ज़्यादा आवाज़ हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। Yes, please start your. Yes, Sajid. जी मोहसिन भाई। What do you say? What did you ask? I say like Competition for engaging students. Schools. Government schools, these activities are less or absent. Facilities provided private schools provide proper infrastructure and equipment required for the physical development of children. Gov schools.
Government schools, institutes lack basic facilities like electricity and proper classrooms, etc. Thank you. Can I say more in communication? Hatija and Ishrat should also speak. देखिए ये ब्रेकआउट रूम में इसलिए कि आप सब बोले लाइक Yes, same will say government schools are good and same will say private schools are good. Today I got some good talk. क्या रीजन हो सकते हैं? मरियम से पूछें, आप सिस्टर मरियम से पूछें। मेरे ख्याल से मैं यही बोलते हैं कि वहाँ फैसिलिटीज ज्यादा होते हैं, दर्स की मेथड बेहतर होते हैं, लेकिन यहाँ काबुल में स्पेशल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटी में टीचर्स होते हैं वो बहुत टॉप लेवल में होते हैं, और अनदर रीजन गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटी फ्री होते हैं, उसका कोई फीस नहीं होता। मैं खुद भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फीस देती हूँ, तकरीबन 50,000 क्या कहते हैं इसे अफगानी। सो इट इज बहुत महंगा होगा, हर किसी का बस नहीं चला कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़े, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और टीचर्स के है वो attention from their teachers. Some people are out of courage in such a period of inflation. Private schools have to pay their fees. Then the convention comes on TV and says that the privates should reduce their fee. That's why children do not government education institutions. There are teachers in the government how do not teach become they do not have trouble and they are the same teacher in the private school. जी किस तरह की रीजन शेयर करूं? यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कौन सी बेस्ट है और क्यों बेस्ट है, उसकी वजह क्या है, आप ये बता दें। गवर्नमेंट स्कूल लेवल तक तो जो है ना वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट बेस्ट है, और कॉलेज लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी तक तो फिर वो पाकिस्तान में जो है ना वो फिर गवर्नमेंट सेक्टर है वो बेहतर है। ओके देन तो फिर आज ग्रुप में जाते हैं, शेयर वहाँ पे क्या क्या पर्सपेक्टिव्स आते हैं सामने। Okay, fine then. Thank you so much. Now we are going to start it. Okay, अभी हम शुरू करने वाले हैं।
हर एक पार्टिसिपेंट के पास जो है हार्डली 3 to 4 मिनट्स अपनी सफाई पेश करने के लिए टू एक्सप्लेन अबाउट द टॉपिक. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर. मैं आखिर में फिर बताऊंगा किसकी पॉइंट्स बड़ी जबरदस्त थी, whose points were excellent. Clear? So here we are. तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा प्राइवेट वालों से. So in private education सबसे पहले who will speak? Yes please. प्राइवेट से कौन बात करेगा? Yes please. Sir, me. Okay, yes Samira. And the government वाले जितने भी सुने, okay, इसके खिलाफ पे आप बात कर सकते हो.